Yeah. Okay, so welcome everybody to this webinar on. आप सभी का स्वागत है इस बैठक में। श्रीलंका में जो भी आपदा की परिस्थिति निर्माण हुई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस बैठक में। मैं तुरंत बहुत ही जल्दी अनुवादकर्ताओं के बारे में मैं बताना चाहूंगी। हमारे पास में अंग्रेजी Speak in Spanish, and so that can also be translated into English and Hindi. For interpretations, you click on the round icon on the Zoom screen below and click on whichever language you want it to be interpreted. आज के इस वेबिनार में हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। अनुवाद के लिए आप आपके जूम स्क्रीन के नीचे जो गोल आइकन है उस पे क्लिक करके हिंदी में क्लिक कर सकते हैं। This webinar today is being organized by People's Health Movement. PHM is a global network bringing together grassroots health activists, civil society organizations, and academic institutions from across the world, particularly from low and middle income countries. One of the 6 thematic groups in PHM is the nutrition and food sovereignty, which is also hosting this webinar today. The vision of this group is the creation of an equitable and fair food system based on the inalienable rights of people to food and adequate nutrition. We will have Vandana Prasad moderating today, and we have 4 speakers after her. Dr. Vandana is a pediatrician by training. She is a long-time member of health and food security movements in India. Currently, she is the technical advisor to Public Health Resource Network, which works in different states of India for advocacy on nutrition and public health systems strengthening. Thank you, Vandana, for agreeing to moderate today. I'll give it to you now. Thank you so much, Deepika, and a very warm welcome to all of you for being part of this important webinar. And special welcome to the panelists who've taken time to prepare for this webinar and to be amongst us. We have really a stellar list of people amongst us from different countries. जो भी सह प्रतिभागी के रूप में जुड़े हुए हैं उसमें हक और अधिकार के मुद्दों को लेके, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर काम करने वाले, विविध क्षेत्र में काम करने वाले, अनुभव रखने वाले कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और people attending I see from all over the world really, and thank you so much all the attendees for being here. और जितने भी आज हमारे सहभागी हैं हम उन सभी का स्वागत करते हैं। So we shall start with the main presentation from Sri Lanka, followed by a panel discussion from the representatives from Argentina, India and Bangladesh. Before we start, just a few words on the context, which I think is, if you're here this evening. शुरू करने से पहले हम कुछ मुद्दों के बारे में हम जरूर यहाँ पे बताना चाहेंगे। As we know, the mainstream policies across the world, जो भी मुख्य धारा में push for large scale industrial farming, industrial animal कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में जिस तरीके से मुद्दों के पे काम हो रहा है, व्यवसाय को लेकर, उद्योग को लेकर जो काम हो रहा है, इन सारे मुद्दों से जो भी जो असमानता और असमता जनक परिस्थिति समाज में उत्पन्न हो रही है, हमें उसको लेकर एक आर्थिक रूप से भी उसके क्या प्रभाव समाज पर पड़ते हैं, हमें उसके बारे में सोचना होगा। और इस वैकल्पिक रूप में हम इन सारी यंत्रणाओं को कैसे देखते हैं, पोषण के मुद्दों को कैसे देखते हैं, स्वास्थ्य के मुद्दों को कैसे देखते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह एक श्रृंखला की तरह है, खाद्य श्रृंखला में हम इन सारे मुद्दों को किस तरीके से देख रहे हैं, यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। Nutritious food, I think this element. क्योंकि पोषण के जो मुद्दे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं और खाद्य संस्कृति में विविधता होना बहुत जरूरी है, उसी से हमें असल में पोषण मिलता है।
और ये सारी जो असमानताएं हैं आपको खाद्य संस्कृति में भी दिखेगी, खाद्य श्रृंखला में भी दिखेगी। और हम एक ऐसा सपना देख रहे हैं, हम एक ऐसे उद्देश्य के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें हम पूरे दुनिया को कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे और सभी को अ, सभी को खाद्य सुरक्षा सभी की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि कई सारे नीतियों को अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे इन सारे मुद्दों को काफी महत्वपूर्ण तरीके से देखा गया है। कुछ योजनाएं, कुछ परियोजनाओं के माध्यम से सरकारें ये प्रयास कर रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की सारी सरकारों तक हम ये पहुंचे, पोषण और खाद्य श्रृंखला, खाद्य विविधता के बारे में हम बताएं। और इस सारे परिप्रेक्ष्य में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इन सारे संघर्ष के साथ में आगे बढ़े, क्योंकि हम सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अपने अपने काम में इन सारे मुद्दों को लेकर कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। और हम ये भी अपेक्षा कर रहे हैं कि भविष्य में सरकारें इन सारे मुद्दों को काफी गंभीरता से लें, इन मुद्दों के बारे में सोचे, जो भी नुकसान अभी तक समाज को और समाज में जो हाशिए पे समुदाय हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, या अन्य जो हमारे समुदाय पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जाने। हमारे साथ में डॉक्टर बेदाकुन है, वह श्रीलंका के सरकार के साथ में उन्होंने कृषि के संबंध में काम किया है। और long academic career in teaching sustainable agriculture. वह एक वैज्ञानिक के रूप में भी काम कर रहे थे कृषि से संबंधित, और वो एक अभ्यासक भी है। और उन्होंने वो कई अन्य सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी काम किया है, तो मैं अभी उन्हीं को आमंत्रित करती हूँ। और असल में श्रीलंका की क्या परिस्थिति है, आपने उसका विश्लेषण करके अगर आप हमारे सामने रख पाएंगे तो हम सारे प्रतिभागियों को काफी मदद होगी इन मुद्दों को समझने के लिए। शुक्रिया। कृपया आप अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। क्या आयोजनकर्ता में से कोई व्यक्ति मदद कर पाएंगे उनको अनम्यूट करने के लिए? Find the mic button and just press on it, please. Deepika, could you assist? Yeah, I'm trying. क्या आप प्रयास कर सकते हैं उनको अनम्यूट करने का? I'm not able to directly unmute him. It's Dr. Liner, can you मैं click red button that looks like a mic with a slash across it? Can you just press it with your cursor? क्या आप अपने माइक के चिन्ह को टैप करके उसको अनम्यूट कर सकती हैं? कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश करें। Deepika, as host, you हमारे आज के वक्ता no, को it's not allowing me. हम विनती कर रहे Dr. हैं, Lionel, on the गुजारिश कर रहे हैं कि the वो below on the अपने left hand आप को side, अनम्यूट कर there's a पाए। mute आपके icon. दाईं बाजू mic. पे फोन या अपने कंप्यूटर में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दाईं तरफ आपको एक माइक का चिन्ह दिखेगा, आपको उस पे क्लिक या टैप करना है, तब माइक अनम्यूट हो पाएगा। जब तक वो इस तकनीकी संघर्ष के साथ में जूझ रहे हैं, हम विनती करेंगे कि हमारे अगले जो वक्ता है उनको आमंत्रित करने से पहले मैं श्रीलंका में जो भी परिस्थिति, मार्कोस हमारे साथ में है, वह वकील के रूप में काम कर रहे हैं, वह वकालत करते हैं और खाद्य संप्रभुता को लेकर भी उनका काफी काम है, पोषण स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर वो काम करते हैं। वह वकील के रूप में खाद्य संप्रभुता को लेकर अन्य अपने वकील साथियों के साथ में वह काम कर रहे हैं। बांग्लादेश से भी फरीदा अख्तर हमारे साथ में है, वो UBI NLG की वह
फाउंडिंग मेंबर के रूप में उन्होंने काम किया है। जैव विविधता के मुद्दे हैं, महिलाएं जो किसान हैं उनके, दलित आदिवासी समुदाय, जो अन्य हाशिए पे समुदाय है जो खेती करते हैं, उनके कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमें कृषि के क्षेत्र से जोड़ते हुए हमें उन मुद्दों के बारे में चर्चा करनी होगी। और कृषि वैज्ञानिक के रूप में भी कई सारे हमारे साथी आज हमारे साथ में जुड़े हैं। 1000 से भी ज्यादा किसानों के साथ में हमारे वक्ता काम करते हैं और उन्होंने सुधा एकेडमी जो अध्ययन और अभ्यास का केंद्र है उनके साथ में भी वे जुड़े हुए हैं। मैं मार्कोस को आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपनी मुद्दों को यहाँ पे रखें। तो वक्ता के रूप में हम मार्कोस को अभी आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर लाइमल जी ने भी आपने अनम्यूट किया है अभी अपने आप को, तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। No, he's unmuted, but he can't speak. Yeah, I'll do that. You continue. Yeah, so perhaps you just do this on the side, make a phone call. I see that he's muted on my screen. It looks मुझे अभी भी स्क्रीन पे हमारे अगले वक्ता म्यूट पे दिख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अनम्यूट करके अपनी बात को हमारे साथ साझा कर पाए। तो मैं ये विनती करूंगी कि मार्कोस आप अपनी बात को बहुत बहुत शुक्रिया वंदना आपका, और आपने आंदोलन के मुद्दों को लेकर और अभी हम सारे साथी संस्था संगठन जिस प्रकार का काम कर रहे हैं उसकी एक पृष्ठभूमि जो हमें बताई है उसके लिए धन्यवाद। Y realmente se conoce muy poco en general sobre Sri Lanka, es muy poca la información que tenemos sobre Sri Lanka y sin embargo en el último año Sri Lanka ha estado presente muy fuertemente en los medios de comunicación। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है मीडिया में जिस तरीके से श्रीलंका की परिस्थिति जो है और gracias a la influencia del conglomerado de empresas químicas que controlan los insumos del modelo agroindustrial dominante impuesto en nuestro país. Y en ese sentido, quisiera contarles muy brevemente que Argentina ha sido la puerta de entrada। खाद्य श्रृंखला के बारे में और कृषि के क्षेत्र के बारे में जब भी हम इसके बारे में देख रहे हैं, यह बड़ी कंपनियां और उनकी कृषि के क्षेत्र में जिस तरीके का हस्तक्षेप हो रहा है, Se le ha dado autorización a 66 eventos transgénicos। 1996 से हम देख रहे हैं Argentina es el tercer país productor mundial जेनेटिक después de Estados Unidos y después de Brasil। El 80% मॉडिफाइड de la superficie जो cultivada en nuestro país está destinada a transgénicos बीज है वह destinados principalmente a la 66 प्रकार के नए बीज बाजार में आए हैं और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन पोषण के मामले में वो किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गए, ये Tenemos dos papas देखना जरूरी है। resistentes a virosis, un cártamo con expresión de quimosina y, como si esto fuera poco, este año el gobierno le ha dado autorización comercial al primer evento de trigo transgénico en el mundo, ¿no? Un trigo transgénico सरकार की तरफ से जो resistente a la sequía, जैविक रूप से मॉडिफाइड किए हुए जो बीज का इस्तेमाल है वो भी बढ़ गया है। उसके जो जहरीली परिणाम हैं या उर्वरकों के इस्तेमाल से होने वाले लोगों के स्वास्थ्य पे होने वाले लोगों के स्वास्थ्य पे होने वाले परिणाम काफी खतरनाक है। हमें यह लग सकता है कि हम तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं या फिर कृषि के क्षेत्र में हम काफी प्रगति कर रहे हैं, काफी विकास कर रहे हैं, लेकिन हम और ये दावा भी किया जा रहा है सरकारों की तरफ से कि हम भूख की समस्या, भूखमरी की समस्या से जूझने के लिए हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं और उर्वरकों के इस्तेमाल से और या फिर
जैविक रूप से मॉडिफाइड जो बीज है उसके इस्तेमाल से हम ज्यादा खाद्य का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हम उसके जो स्वास्थ्य को लोगों के स्वास्थ्य पे होने वाले उसके जहरीले या दुष्परिणाम या खराब जो प्रभाव है, हम उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। लेकिन अभी वो परिस्थिति आ चुकी है कि जिसमें हमें पोषण में कमी होने वाले खाद्य को खाने के बाद में अभी हम उस मुश्किल में फंस सकते हैं। अभी सही समय है कि हमें तुरंत इसको रोकना चाहिए और जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियों में हमें पोषण के मामले में आने वाली पीढ़ियां हमें बहुत कम पोषक पोषण के पोषण को लेकर काफी चिंताजनक परिस्थितियों का सामना आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ सकता है। आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो पूरी दुनिया में इस तरीके के उत्पादन का बढ़ना और 5,000 से भी ज्यादा ऐसे उत्पादन पहले ही पर्यावरण की जो श्रृंखला है जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, और खाद्य श्रृंखला में भी वो आ चुके हैं। उर्वरकों का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया जा रहा है, इसके परिणाम जो है हमें देखना होगा कि कृषि उद्योग के वजह से कैंसर की बढ़ते हुए मामले ये हमारी चिंता बढ़ा सकते हैं। रासायनिक रूप से उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय जीवन पे होने वाले परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं, और यह इस तरीके के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और बाकी enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, trastornos de fertilidad tanto masculinos como अभी क्या हो रहा है उसका? आप जो भी पर्यावरण के चक्र है आप उसको नहीं समझ रहे हो। आप जो भी जैविक रूप से मॉडिफाइड है वो बीज को बो रहे हो, उससे उत्पादन अलग अलग सीजन में जब पर्यावरण के दृष्टिकोण से उस खाद्य पदार्थ का बहुत बहुत शुक्रिया मार्कोस आपका। आपने अर्जेंटीना की परिस्थिति के बारे में आपने जिस तरीके से बात की है वह बहुत महत्वपूर्ण था, और आपने जो मुद्दा तो हमने ये देखा जो भी जैविक रूप से जो मॉडिफाइड किए हुए बीज है उसके इस्तेमाल और उसके हम बस यह एक अंदाजा कर सकते हैं कि मानव वंश को इसका क्या नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ियों को इसका क्या नुकसान होगा, लेकिन हम उसके प्रति हमें और अध्ययन और संशोधन करके हमें यह देखना होगा कि फरीदा और हमारे साथ में अगले जो हमारे साथी हैं, हम अगले जो वक्ता हैं हम उनसे भी बात करेंगे। बांग्लादेश में क्या परिस्थिति है हम उसके बारे में भी जानेंगे, और उसके बाद में हम माइक अगर अनम्यूट तब तक हो पाए हमारे अगले वक्ता का तो हम वहाँ उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बात करने का मौका देने के लिए, और हमें डॉक्टर लायनल जी को भी सुनना है क्योंकि उनकी देश की परिस्थिति के बारे में हमें और जानना है और उनके विश्लेषण को भी जानना है। बांग्लादेश यह एक दक्षिण एशियाई देश है, और श्रीलंका की तरह ही हमें भी कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसमें खाद्य सुरक्षा के मुद्दे हैं, खाद्य संप्रभुता के मुद्दे हैं, खाद्य श्रृंखला के मुद्दे हैं। विकास के नाम पे जो भी हड़कंप मचा हुआ है हमारे देश में, और
हम उसके साथ में काफ़ी अपने आप को जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों की जो परिस्थितियाँ हैं वो कम अधिक तरीके से काफ़ी समान रूप से हम पर वो प्रभाव डालती है। और जो पहले राष्ट्रपति जी के साथ में जिस तरीके का संघर्ष जनता को करना पड़ा, यह भी हमने देखा। हमने पहले श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसमें जनता ने आगे बढ़ते हुए अपने राष्ट्रपति के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी मांग को रखने के लिए वह रास्ते पर उतर आए। उसके लिए हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। लेकिन जो भी महंगाई और अन्य जो परिस्थितियां उस देश पे उत्पन्न हुई, निर्माण हुई, उसको लेकर हम बाकी पड़ोसी देश काफी चिंतित हैं। और हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि वैसी परिस्थितियां हमारे देश में ना निर्माण हो, और उन परिस्थितियों से जूझने की ताकत हमें श्रीलंका की तरह ही मिलनी चाहिए, जिससे हम रास्ते पे उतर के अपने संघर्ष कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में That's fine for now, Farida. We'll come back to you. Yeah. Yes, please. एक आखिरी मुद्दा मुझे जोड़ना है कि इसमें मीडिया की वजह से भी कई मीडिया ने ये दिखा दिया कि जो पूंजीपतियों की रुचि है इस तरीके की परिस्थिति, किसी भी देश को इस तरीके की आर्थिक खाई में धकेलने की, उनके जो षड्यंत्र के बारे में मीडिया ने भी बहुत अच्छे से रिपोर्ट किया है। और मीडिया के रोल के बारे में, मीडिया की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और लायनल हमारे साथ में हैं, और कुछ सवाल पहले से हमारे साथ में हमारे साथियों ने साझा किए हैं, वह चैट बॉक्स में है, आप तब तक उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी वक्ता जो है उसके बारे में अपनी बात को रखने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बात करने का मौका देने के लिए। हम श्रीलंका के बारे में हमेशा सुनते हैं, और जो भी जिस भी प्रकार की परिस्थिति से हम अ, अ, तो हमें यह भी सीख मिली है हमारे परिस्थिति से, मीडिया की भूमिका भी हमने देखी। हम जनता के रूप में भी इन सारे मुद्दों को देख रहे थे, उसमें हमें इतनी खराब परिस्थिति में जाने तक हमें राह नहीं देखनी चाहिए। हमें अगर कुछ अपने संघर्ष कुछ भी किसी भी मुद्दों के बारे में हमें अगर आपत्ति है, तो बतौर जनता हमें समय समय पे उन सारे मुद्दों पे आवाज उठानी चाहिए। जब हम हर एक पड़ाव पे इन इन आवाजों को हम बुलंद करते हैं, अपनी आवाजों को सरकार के सामने रखते हैं उसके विरोध में, तभी शायद इसका बेहतर विश्लेषण कर पाएंगे, और हम इन सारी परिस्थितियों को भी और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए इतना परिस्थिति देश की इतनी खराब होने तक किसी ने इंतजार नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी भूमिका को और पुख्ता करते हुए समय समय पे सरकार के खिलाफ हमें अपनी भूमिका को सरकार के खिलाफ की भूमिका को हमें सरकार के साथ में साझा करना होगा, बातचीत करते रहने होगा। हमारे अगले वक्ता भी हमारे साथ में है, लियोनल। मुझे माफ कीजिएगा कि आयोजनकर्ताओं की तरफ से आपको अनम्यूट हम नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप अंत में अनम्यूट करके हमारे साथ में जुड़े। जो श्रीलंका में क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? अगर आप श्रीलंका में देखें तो वहाँ पे जो तकनीकी है और जो पैकेज है, अगर पिछले 7 दशकों में और बहुत साल अभ्यास करने के बाद इन तकनीकों के ऊपर हमें पता चला है कि बहुत सारी समस्याएं सामने आई है हमारे सामने पिछले 15-20 सालों में।
मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिसके कारण जो लागत है वो बढ़ी है, और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो बाजार की कीमत है वो कैसे बढ़ी है, और जो हमारे उत्पाद हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा बनाए गए हैं या जैव विविधता का उसमें क्या अहम रोल रहा है, भूमिका रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन सभी के कारण जो है बहुत ज़्यादा मृदा क्षरण हुआ है, और उस और प्रदूषण भी एक कारण है जो इन सभी के कारण हुआ है। इसके साथ-साथ जो सिल्टेशन है, जो गाद का जमा होना है, वह भी अ, अलग-अलग जगहों पर हमने पाया है। हमारे जो पानी के संसाधन हैं, जल संसाधन हैं, उसमें काफ़ी अ, हानि हुई है, और आप देख सकते हैं कि उर्वरक जो है हमारे खेतों में वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाला गया है, जिसके कारण बहुत सारा प्रदूषण जो है जल संसाधनों में भी गया है। और ये जो पानी है जो किसानों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे फसलों में भी एक प्रदूषण को लेकर आ रहा है। सबसे पहला इसके कारण जो है हमारे गुर्दों में बीमारियाँ हो रही है। पहले यह उत्तरी, फिर मध्य और फिर उसके बाद पूर्वी राज्यों में देखने को मिला, और उसके बाद उत्तर और दूसरे राज्यों में यह पाया है। और दिन ब दिन जो है या इस तरीके की बीमारी के बारे में जानकारी मिल रही है। ख़ास करके जो एक जानकारी आई जिसमें 13 लोग ख़ास करके जो कृषक हैं, उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो है श्रीलंकाई सरकार की आँखें खुली, और उस समय यह पता चला, इसकी जाँच हुई बहुत सारे लोगों द्वारा, और उसी समय डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक निर्देश आया कि जो रासायनिक कीटनाशक हैं और जो दूसरे केमिकल हैं उन पर बैन किया जाए, उन्हें प्रबंधित किया जाए। तो 2013 में और 2014 में एक कीटनाशकों की लिस्ट आई जिसको पूर्ण रूप से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया, और करीब 15 ऐसे कीटनाशक थे जिसमें एक लेवोसिन भी था, और यह पाया गया कि यह जो है वह प्रमुख कारण रहा है सीकेडीयू का। और उसके आधार पर श्रीलंका की सरकार, यह 2015 का समय था, उस समय वह चाह रही थी कि, और उन्होंने जो पूरी खेती है उसको जैविक खेती के रूप में परिवर्तित करने का एक आग्रह किया इसके अगले 3-4 सालों में। और इसमें उस समय की जो सरकार थी 2015 की सरकार, उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, कोलसेमा करके, जो कि वो एक तरीके से प्रबंधन करने वाली एजेंसी थी जिसने इस ज़िम्मेदारी को अपनाया। वो बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण काम किए। पहला, उन्होंने जो जानकार फील्ड ऑफिसर थे उनको हायर किया, उनको ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए ताकि वो किसानों को प्रशिक्षण दे सके कि कैसे वो इस परिवर्तन के लिए तैयार हो सके, और जो उर्वरक है उसके जगह पे इन चीज़ों का उपयोग करें। और
कैसे वो जैविक खाद और खास करके जो द्रव्य रूप में है, उनका भी वो कैसे यूज़ कर सकते हैं और सूक्ष्म जीवों का कैसे उपयोग कर सकते हैं अपनी खेती में, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया उन्होंने। या टीम थी वो 10 लोगों की थी, तो वो बहुत कुछ नहीं कर पाई पूरे देश में। लेकिन एक और बात है कि वो उसे किसी मदद नहीं मिली, तो वो अपनी सीमित क्षमता में जितना काम हो पाया वो कर पाए। और तो यह एक गलती थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ये इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि जो मुख्य धारा के संगठन थे, जो ये सारा काम कर सकते थे खेती से संबंधित पूरे देश में, उनको उन पर ध्यान नहीं दिया। तो इसके प्रशिक्षण के बाद उन्होंने फील्ड ट्रायल भी किया, जिसमें उन्होंने तुलना की कि जो बायो जैविक उर्वरक थे, उससे क्या उसकी क्या उत्पादकता है, उसका क्या प्रभाव है और बहुत कम समय में यह किया गया। लेकिन आखिरकार जो हुआ 3 सालों में अगर हम देखें, तो सेमा को अपना काम बंद करना पड़ा और जब तक अगला चुनाव नहीं हुआ, तब तक उनका काम रुक गया और जो अगला चुनाव 2020 में हुआ और मुझे अभी भी याद है कि जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने पब्लिक में लोगों के सामने उन्होंने यह प्रॉमिस किया कि जब वो सरकार में आएँगे, तो वो ऐसे उर्वरक जो है मुफ्त में लोगों को मुहैया कराएँगे, बिना कोई पैसे लिए हुए। तो जो जिन किसानों ने जैविक खेती को शुरुआत किया था, उन्हें उम्मीद थी मुफ्त उर्वरकों की, जैविक उर्वरकों की, ताकि वो अपनी खेती आगे फिर से चालू रख सकें। तो यह एक पहला अटेम्प्ट था, पहला प्रयास था और हम अभी भी कहते हैं कि हमारे पास वह सारी तकनीक है, हमारे सामने अच्छे परिणाम भी आए थे, फील्ड ट्रायल से भी पता चला। लेकिन ये सारे जो निर्णय हैं वो नेताओं द्वारा लिए जाते हैं, जो मुख्यधारा में हैं और किसानों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये बता नहीं पाते हैं किसान कि कैसे यह किया जा सकता है। तो 2020 में एक दूसरा प्रयास भी हुआ, जब विपक्ष के नेता जब सरकार में आए, 2 तिहाई बहुमत थे, तो उनके पास वो जो सरकार में आए थे, वो श्रीलंका की सूरत बदलने के लिए आए थे। तो तो उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वह जो सरकार में आए, वह एक नेता नहीं है और 2021 में उन्होंने एक कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा, या कहते हुए कि उर्वरक का जो आयात है और कीटनाशक का जो आयात है, वह पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, रातों-रात। तो यह सरकार द्वारा जारी अधिसूचना थी 2021 में 6 मई को और उस दिन के बाद से यह लागू हो चुका था। ये एक बहुत ही अच्छा कदम था, जिसके बाद कोई भी उर्वरक या कीटनाशक का आयात नहीं किया गया। यह एक अगर आप देखें 2015 के समय जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने यह विकल्प दिया था किसानों को कि जो जैविक खेती ग्रहण करना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, तो उन्हें
पैसे दिए जाएँगे और उस पैसे का उपयोग करते हुए वो जैविक खेती अपने खेतों में कर सकते हैं। और उसी समय जो किसान अ, उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो अ, तो इन पैसे पे कोई सब्सिडी नहीं था या अलग से पैसा दिया जा रहा था, तो उसको उस समय वो पैसे दिए जाएँगे जब तक वो जैविक खेती में अपने खेतों को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक गलती सरकार द्वारा की गई थी कि उन्होंने आयात करना बंद कर दिया अजैविक उर्वरकों का, और अचानक से जो किसान वैसी खेती कर रहे थे, उनके ऊपर एक संकट आ गया, लेकिन वो जैविक खेती में आए। और दूसरी जो गलती हुई थी कि वो एक उन्होंने एक विशेषज्ञों का एक समिति बनाई जो इसका आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार थे। तो उन्होंने एग्रोइकोलॉजी और जो सतत खेती निरंतर खेती के बारे में एक अध्ययन, और उन्होंने कुछ कंपनियाँ जो कंपोस्ट बनाती है, जैविक खाद बनाती है, तो यह एक परिस्थिति ऐसी बन गई थी जिससे उनके पास एक शक्ति थी, इसमें वो सूक्ष्म जीवों को विकसित कर सकते हैं, जो कि काम आ सकते हैं। तो उन्होंने इन अलग-अलग जगहों से जैविक खादों का कलेक्शन किया और किसानों के बीच उनका वितरण मुफ्त में किया। तो जब तक उन्हें पता चला कि जो मात्रा है वो काफ़ी नहीं है, तो उन्होंने दूसरे देशों से उर्वरकों का आयात करना शुरू किया। जैसे भारत से यूरिया का आयात करना शुरू किया और किसानों के बीच वितरण किया उसका। और दूसरा, उन्होंने जो आयातित जो आयात था वो चीन से, और उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैथोजेन्स थे, कॉलीफॉर्म और ऐसे सूक्ष्मजीव थे, जिसके कारण उसको रोक दिया गया, उसके आयात को चीन से। और तो यह एक सरकारी योजना थी, जिसको निजी कंपनियों द्वारा लागू किया जा रहा था। तो यह कुछ अ, संकट थे या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी विफलताएँ थी। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि श्रीलंकाई सरकार के पास कोई ठोस राष्ट्रीय स्तर की योजना नहीं थी, जिसका वो पूरे देश में लागू कर सकें। तो यह किसी और लोगों को लागू करने के लिए दे दिया गया था। और दूसरा बिंदु यह है कि 2015 से 2021 के बीच उन्होंने कभी भी कृषि विभाग को शामिल नहीं किया, जबकि इसका मैंडेट था कि इसमें किसानी को प्रोत्साहित किया जाए। और जो सरकार द्वारा यह मैंडेट था, उसमें यह था कि पूरे देश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इसको करने के लिए पूरी ज़िम्मेदारी जो है कृषि विभाग को दी जा सकती थी, क्योंकि हमारे पास आधारभूत संरचनाएँ हैं, शोध है और हमारे पास जो व्यक्ति हैं
विशेषज्ञ हैं वो भी काफी ज्ञान से भरे हैं, और वह जो है इन सभी जो संसाधन है कृषि विभाग के उसको आगे लोगों के फायदे के लिए इसका उपयोग कर सकते थे। और सरकार का बिना कृषि विभाग को शामिल किए यह करना एक राजनीतिक फैसला था, और यह जो कारण है इन कारणों से यह सारी विफलताएं आई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया था, और यहाँ पे कुछ कारक थे जो इस विफलताओं के पीछे कारण को दर्शाते हैं। इसके अलावा जो कंपोस्ट, जो खाद जो किसानों के बीच बांटी गई थी वो अच्छे गुणवत्ता के नहीं थे। किसान इसके बारे में हमेशा शिकायत करते रहते थे कि जो खाद उन्हें मिला है वह पूर्ण रूप से या तो असुरक्षित है या कोई कोई दूसरा व्यर्थ का सामान है, तो उनके पास सही चीज़ नहीं पहुँच पाई। और दूसरे अगर देखें तो किसान जो है वो पूरे देश के लिए भोजन पैदा करता है, लेकिन यहाँ पर देखें कि इन फैसलों राजनीतिक फैसलों के कारण तो पूरे देश तक खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा, और जो कीमतें हैं खाद्य सामग्रियों की उस वो आसमान पर पहुँच गई। और इसके साथ-साथ जो मुर्गे हैं और जो दूसरे मांस हैं, उनकी भी कीमतें आसमान पर गई। हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है बहुत से जगहों में उत्पादित होती है और उनको खाद की ज़रूरत होती है, और गलत फैसले सरकार द्वारा लेने के कारण इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो अब जो समस्या है वह बहुत जटिल हो चुकी है, और हमारे पास भोजन सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा की परेशानी आ गई है। अगर आप देखें तो जो मत्स्य अ, अब देखें तो सरकार जो है वो पैसे छाप रही है ताकि वो सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग जो है उनको सैलरी दे सके, वेतन दे सके। और कुछ जो है And final to और लोगों ने जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और ये सारे प्रदर्शन जो हैं हताशा के कारण हिंसक होते चले गए। और इसका जो पूरा ब्लेम था, इसका आरोप था, वो प्रेसिडेंट और उनके भाइयों के ऊपर पड़ा कि वो अप अपने वो सरकार को छोड़कर घरों में चले गए। तो ऐसे फैसले लिए गए। और एक और समस्या जो थी कि जो लेफ्ट पार्टी जो थी वो बहुत सपोर्ट में थी, समर्थन में थी जैविक खेती की, और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके खिलाफ बातें करते थे, और उदारवादी ताकतों के खिलाफ काम करने की बातें करते थे। तो उन्होंने भी उस समय लोगों का साथ नहीं दिया जब सरकार द्वारा ऐसी नीतियों को अपनाया जा रहा था। तो यह भी एक विफलता रही है लोगों के सामने, लेफ्ट पार्टियों की भी। तो यह एक बहुत अच्छा अवसर था लोगों को एकत्रित करने का और सरकार में बदलाव लाने का। तो हम लोग अब राजनीतिक पार्टियों से ऊब चुके हैं। श्रीलंका के लोग जो हैं वो चुनाव से भी ऊब चुके हैं, और तो अब जो लोग और युवा चाहते हैं, वो एक बदलाव चाहते हैं। मैं कृषि विभाग में था बहुत पहले, और हम लोग जो है फैसले
देश और किसान के बारे में सोचते हुए लेते थे, लेकिन अभी अगर हम तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि कृषि जो है अभी देश में बहुत इसका राजनीतिकरण हो गया है और हमें इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। लोग इसमें बदलाव लाने की चाहत रखते हैं और सरकार में बदलाव लाने की चाहत रखते हैं। तो अब हम कहना चाहते हैं कि खास करके जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक रास्ता होना चाहिए ताकि वो एक बड़े शक्ति के रूप में देश में उभर कर आ सके। वो कोई यूनियन बना सके या फिर अ, एक 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 समूह के रूप में उभर सके ताकि पूरे श्रीलंका में जैविक खेती को उभारा जा सके। आप उदाहरण के रूप में क्यूबा और दूसरे जो ऐसे देश हैं, का उदाहरण देख सकते हैं, जहाँ पर वो जैसे ला विया कैंपेसिना आप देखते हैं एक आंदोलन बनकर उभरा था, जिसमें इन सभी बातों को उभारा गया था। तो जो सरकार और विभाग उन सभी से बात करने की ज़रूरत है। उनमें बहुत अच्छे जानकार लोग हैं जो ऐसे बदलाव को लाना चाहते हैं। मैं भी उस विभाग में तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले यह कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे जितना समय मिला था उससे ज़्यादा समय ले चुका हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अब हम लोग पूरे पूर्ण रूप से किसानों पर निर्भर हैं और उनका संरक्षण होना चाहिए, उनको उनका उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए और उन्हें जो उनका उचित जगह है, उन्हें दिया जाना चाहिए, उन्हें नेतृत्व दिया जाना चाहिए। अब यह कैसे करना है, इसके बारे में हमें सोचना है। Thank you बहुत-बहुत so much, धन्यवाद। Dr. बहुत-बहुत Veerapandiyan. I think धन्यवाद, you've raised डॉक्टर many वीरप्पन। critical issues आपने this way, बहुत and all of सारे you जटिल who stayed till मुद्दों the को end उठाया और responded अब हम to what you heard. सीधे हमारे And if पैनलिस्ट any के clarifications are पास needed, जाएँगे कि the अगर lines will be placed उनके पास कोई in the प्रश्न PPT हो या फिर कोई and I'm going to बात the opposite उन्हें direction now. पूछनी So, हो तो आप if वो पूछ Dr. सकते Ramu, हैं। would you तो like to अब say something? मैं डॉक्टर रामू के पास जाऊँगी, वह कुछ बोलना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। अखबारों में पढ़ने से अच्छा आपका विश्लेषण था। बहुत बार हम देखते हैं कि अखबारों में पत्रकारों द्वारा एक ओपिनियन आता है, एक विचार आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि जो विश्लेषण आया है अभी यहाँ पर, वो सीधे तौर पर यह दिखाता है कि यहाँ पर कोई जो परिवर्तन का की एक योजना होनी चाहिए थी, वो नहीं थी सरकार के पास और जो मुसीबतें हैं, वो बढ़ती गई और सरकार के पास जो विकल्प थे, वो बहुत कम हो गए। उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे उर्वरकों के आयात के सिवा और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण निकल कर आया है कि जो सांस्थानिक तंत्र है, उसके तहत इन्होंने परिवर्तन को डिज़ाइन नहीं किया, उसकी योजना नहीं बनाई और जो विभाग हैं, जो कर सकते थे, उनको साथ लेते हुए उन्होंने नहीं किया। जिनको इसकी समझ थी, उनके साथ अगर ये काम किया जाता तो अ, अच्छा होता। तो यह एक सबक है सभी के लिए और तीसरा जो है कि जो परिवर्तन का एक योजना होनी चाहिए। उसमें अगर हम देखें कि लोग कैसे उसको समझ सकते हैं, कैसे उस परिवर्तन को किसानी के स्तर पर ला सकते थे और कैसे किसानों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता था कि उनके जो ज्ञान है, उनकी जो जानकारियाँ हैं, उनको कैसे शामिल करते हुए एक दोबारा इसकी योजना बनाई जा सकती थी। तो जैसे आप देखिए कि खाद वितरण कोई एक समझ नहीं बनाती है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उसको देखते हुए। तो कैसे हम अपने स्थानीय खेती के तंत्र में हमारे संसाधनों का उपयोग कर सकते थे, उसका कोई इसमें नहीं दिखा अ, और इसकी बहुत ज़रूरत है। तो यह मुझे लगता है कि यह भी उसमें नहीं था। तो ऐसे कुछ गलतियाँ जो है, ये हम श्रीलंका से सीख सकते हैं, भारत में भी अगर देखें तो हम लोग भी
हम लोग उस की बताऊँगा फँसे हैं, जहाँ पर भी उर्वरकों का जो उत्पादन है वो बहुत कम हो चुका है, घटता जा रहा है और पहले देखें तो 1995 में 95 किलो उर्वरकों का उपयोग होता था 13 किलो ग्रेन के उत्पादन में तो और भी देखें तो और अभी अगर हम देखें तो सब्सिडी जो है वो बढ़ गया है और लग रहा है कि जो सब्सिडी है वो 4000 करोड़ पहुँच जाएगा और लगभग 70% जो है वो पर्यावरण को हानि पहुँचाने में इनका इनका इनकी भूमिका देख सकते हैं। अगर हम देखें नाइट्रेट और दूसरे जो रसायन हैं, वो हमारे पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित कर रहे हैं। तो जो पारंपरिक खेती है उसको हमने देखा है और जो परिवर्तन है उसको परिवर्तन लाने के लिए एक बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है और उसको बिना किए अगर हम सोचें, उम्मीद करें कि परिवर्तन आ जाएगा और किसान जो है खुद ब खुद अ, इन परिवर्तनों को अपना लेंगे, तो यह काम करने वाला नहीं। सरकार ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा निवेश किया है परिवर्तन लाने के लिए। अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश ने करीब 10 साल से ज़्यादा समय लिया है परिवर्तन करने के लिए। तो उस तरीके का जो एक परिवर्तन करने की योजना जो है, उस तरीके की योजना बनानी पड़ेगी और अगर हम देखें जैसे जो लेफ्ट पार्टी है, उनके जो मुद्दे उठे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लेफ्ट जो है विज्ञान को पश्चिमी विज्ञान के रूप में बताते हैं और जो पश्चिमी विज्ञान है, उसको आधुनिक विज्ञान के रूप में बताते हैं और अभी वो जो बात कर रहे हैं, वो 70 साल पुरानी बातें कर रहे हैं और अगर हम उसी के बारे में बात करते रहेंगे, तो किसी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसका राजनीतिकरण बहुत ही बुरा है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी अच्छी समझ बनाने की ज़रूरत है, ताकि समस्याओं का समाधान हो सके और भारत के संदर्भ में अगर देखें, तो भारत में भी जो परंपराएँ हैं, उसको वापस लाने के लिए एक संघर्ष है कि हमारी परंपरा आपकी परंपरा से काफ़ी अलग है, तो सब पूरे उसी तरह पुरानी परंपराओं को वापस लाने का एक संघर्ष है, तो यह थोड़ा गलत है। अगर हम देखें, पहले की परंपराओं में भी काफ़ी समस्याएँ थी, तो हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 70 साल पहले या 1000 साल पहले, बल्कि हमें आगे बढ़ते हुए जो ज्ञान, जो तकनीक की ज़रूरत है और जो व्यवस्थागत परिवर्तन की ज़रूरत है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। चाहे वो कृषि के ऊपर अनुसंधान हो या जो एक्सटेंशन सर्विसेज़ हो, ये कुछ नए तंत्र जो हैं, हमें अपने समस्याओं को बहुत ज़्यादा हल करने के लिए बनाने की ज़रूरत है और तो इसी तरीके से श्रीलंका में भी नहीं किया गया और भारत में भी नहीं किया जा रहा है, तो हमें एक बहुत बड़े वृहद Okay, Ramu, I संवाद think की this ज़रूरत was है। very, very important and जैसे useful, and you have इन raised some सबके बारे new में बात कर issues सके, about, बहुत-बहुत how धन्यवाद रामू, आपने politics नए misuses मुद्दों को बताया। issues such as technology or tradition, and they all mean different things to different people. And finally, solutions are compromised because, in some sense, the ideology is of paramount importance. So, thank you for that. So, Farida, over to you. Yeah, whichever way, direction you do, I fall in the middle. एक दिशा की जरूरत होती है किसी भी That may not be a bad thing. काम को आगे बढ़ाने के लिए और हमें इन समस्याओं पे समाधान अगर ढूंढने हैं तो एक ठोस दिशा में काम करना होगा और हमें यह भी देखना होगा कि कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान हम ढूंढना चाह रहे हैं। सो उस लिए यह इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है कि तो हम हमेशा यह जो
कृषि अर्थकारण है, इसको सिर्फ कृषि अर्थकारण के नजरिए से नहीं देख सकते, उसका और भी गहरा असर सामाजिक जीवन पे पड़ता है। उसमें जो भी प्रावधान है, जिस तरीके के व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है और इसमें निर्णय प्रक्रियाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कौन क्या निर्णय ले सकते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। जब भी आप उर्वरक के इस्तेमाल की बात करते हैं तो सिर्फ वह अर्थ कारण का मुद्दा नहीं है। आप अगर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में भी सोचेंगे तो हरित क्रांति एक विशिष्ट प्रकार के बीज के साथ में शुरू हुई थी, और वो जो पारंपरिक बीज को बोने की जो प्रक्रियाएं हम करते थे, उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। बाजू में रखते हुए आपने जैविक रूप से जो मॉडिफाइड, जिसको बोलते हैं जैविक नवीनीकृत जो बीज है, आपने वो लाए क्योंकि आपको उत्पादन ज्यादा बढ़ाना था। हरित क्रांति का जो उद्देश्य है वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसी उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से ही हुआ था। और उसमें उर्वरकों का जिस तरीके का भयंकर रूप से इस्तेमाल किया गया, उससे हमारी जमीनें जो हैं वह कम उपजाऊ बन गई, कई जगह पे उसकी उपजाऊ गुण विशेष ही खत्म हो गया, और जो जहर हमने जमीन में बोया है वही इंसानों ने बाद में खाया, और वही हमारे पोषण और स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बना है। इसका अनुभव हमें है, और इसलिए पारंपरिक बीज की जो अहमियत है, उसके महत्वपूर्ण भूमिका और इस्तेमाल के बारे में हमने जानना चाहिए, कि उसके महत्व को समझना चाहिए। हम जो बीज बाहर से ला के अपनी खेती करने की जो कोशिश कर रहे हैं वह ठीक नहीं है, और उसमें सिर्फ रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक रूप से खतरनाक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हुए आप जो एक अन्न खाद्य श्रृंखला की खाद्य श्रृंखला के जो एक बैलेंस है, आप उसको बिगाड़ रहे हो। आप हम सारी इन कृषि के सारे मुद्दों को आप सिर्फ बाजार को केंद्र स्थान में रख के ही उसके बारे में सोच रहे हो। असल में जो व्यावसायिक रूप से मिलने वाले जो बीज है, उसकी उपयोगिता, उसका इस्तेमाल, उसका स्वास्थ्य और पोषण के साथ में आने वाली पीढ़ी को मिलने वाली जो पोषण है उसके साथ में क्या संबंध है, हमें यह देखना होगा। आप सिर्फ पैसे से इसको जोड़ते हुए देखेंगे तो आप सिर्फ उत्पादन बढ़ाएंगे और पैसा कमाएंगे, लेकिन उससे इंसानी वंश को, आने वाली पीढ़ियों को, अभी की पीढ़ियों को कुछ फायदा हो रहा है भी या नहीं भी, यह आपको देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर अगर हम भविष्य में सोचेंगे तो हमें उसका लाभ ज्यादा हो सकता है। इसलिए जैविक खेती, पारंपरिक बीज, इसके अहमियत को हमें समझना होगा। वे कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यह समझना होगा। अब दक्षिण एशियाई देशों में भी आप अगर देखेंगे तो भारत बांग्लादेश की तरफ ऐसे देखता है जैसे यहाँ पे जैविक रूप से नवीनीकृत बीज जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए वो एक लैब की तरह, बांग्लादेश की एक प्रयोगशाला की तरह बांग्लादेश की तरफ देखते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों पे उसका जो गंभीर परिणाम होगा, उसके बारे में, उसके गंभीर परिणाम के बारे में देश नहीं सोच रहे हैं। वे सिर्फ अपने उद्योग, व्यवसाय, व्यापार के बारे में सोचते हैं। उनको गरीब देशों से कितना पैसा मिल सकता है उसके बारे में सोचते हैं।
हमें ये भी देखना होगा कि नई-नई जो तकनीकी रूप से नए साधन खेती के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके लिए डीज़ल की ज़रूरत होती है, ईंधन चाहिए होता है। उससे पर्यावरण पे जो बुरा असर पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को जो बढ़ावा मिल रहा है, पर्यावरण की समस्याएँ और भी क्लिष्ट बनती जा रही है और भी पेचीदे बनती जा रही है और अगर भविष्य में इस तरीके की और भयंकर समस्याएँ जब पैदा होगी, तब हम प्रकृति के विनाश के लिए इंसान खुद ज़िम्मेदार होंगे। हमें उर्वरकों का इस्तेमाल, डीज़ल का इस्तेमाल, ईंधन का इस्तेमाल एक विशिष्ट स्तर तक ही करना चाहिए। उसके बाद में आप जितना बिना सोचे-समझे उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह पूरे मनुष्य वंश के लिए काफ़ी हानिकारक है और उससे होने वाली हानियाँ हमें शायद आने वाले भविष्य के कुछ समय में ही दिखाई देगी। वह एक इन सारे मुद्दों को एक दूरदृष्टि से देखना चाहिए, ना कि तुरंत होने वाले फ़ायदे के दृष्टिकोण से। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसका तुरंत असर यह इंसानी जीवन पे पड़ता है। जलवायु परिवर्तन की समस्याएँ हैं, बढ़ती हुई गर्मी और तापमान जिस तरीके से पृथ्वी का बढ़ रहा है, उसकी समस्याएँ हैं। क ओ ओ कृषि क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो जंगल की हमें बात करनी चाहिए और भविष्य बेहतर बनाने के लिए हम जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आने वाली पीढ़ी को हम कैसे शिक्षित कर सकते हैं, उनको इन सारे मुद्दों को लेकर कैसे ये सारे मुद्दे उजागर कर सकते हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। आप एकदम सही कह रही है, जितनी भी बड़ी पैमाने पे, बड़ी क्षेत्र में होने वाली जो कृषि की जो गतिविधियाँ हैं, उससे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, वो उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है और उससे होने वाले नुकसान के लिए हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं और ये बड़ी कंपनियों को बंद करने के लिए, इसके इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए हमें सोचना होगा। Conditions have not allowed us to do something at scale, and that's why Sri Lanka was important because it attempted something in a country अब level. सोचिए श्रीलंका में जो बड़े उद्योग का हस्तक्षेप जिस तरीके से हुआ है, उसको भी इस परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत ज़रूरी है। हम सवाल के तीसरे चरण की ओर जा रहे हैं और अ, देखते हैं कि उसमें हमारे अगले वक्ता को क्या कहना है। मैं अर्जेंटीना के बारे में इसलिए बात कर रहा था क्योंकि यहाँ के जो अनुभव है आप अपने देश के परिप्रेक्ष्य में इन सारे मुद्दों के बारे में बता सकते हैं। अर्जेंटीना में जो भी हो रहा है, आप उसको पहले हमारे वक्ताओं ने अपने देश की परिस्थिति के बारे में बात की, उससे जोड़ते हुए आप बात रख सकते हैं। हमें खाद्य संप्रभुता के मुद्दों को बहुत संजीदगी से देखना चाहिए कि इन खाद्य संप्रभुता के मुद्दों के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। संगठित रूप से हमें विकास की परिभाषा फिर से बदलनी होगी। खाद्य संप्रभुता के मुद्दों अ अ अ, उम, कि में आने वा खाद्य संप्रभुता के पथ में आने वाले जितनी भी चुनौतियाँ हैं 1.5 बिलियन हेक्टर की अ, ऊपर अर्जेंटीना में जैविक रूप से खेती होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑर्गेनिक जिसको जैविक खेती बोलती हैं, उसकी निर्यात भी हम उसके उत्पादन के बहुत करते हैं। लेकिन बिना उर्वरक के पैदा करना, उत्पादन करना, उपज करना यह बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उसके जो
प्रमाण है उसका उसका जो इस्तेमाल है हम उसको जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। dependientes de venenos, de agrotóxicos y de fertilizantes sintéticos, que hace que este sea un modelo aún hoy muy dependiente, ¿no? Veneno dependiente, un modelo जैविक रूप से जो नवीनीकृत बीज है política उसमें भी कई tradicional अर्थकारण उससे जुड़ा हुआ है paquete tecnológico. और Y वो कृषि से संबंधित salir de la noche a अ, la mañana. आप जैसे ही Si de la noche a la mañana quisiéramos prohibir en todo el जैविक mundo नवीनीकृत los बीज का इस्तेमाल करते हैं आप तुरंत उसमें निर्भर हो जाते हैं sin duda que और la consecuencia sería muy compleja, ¿no? Lo importante es tomar la decisión política de que hay que cambiar, ¿no? El cambio de और ये काफी पेचीदा modelo सवाल है político आप es urgente. अगर यह मॉडल Podemos को hacerlo. बदलना है तो E आपके incluso पास में दूसरा políticas públicas de विकल्प transición वैकल्पिक ordenada रूप से क्या hacia मॉडल है el जैविक खेती का agroecología. आपको En ese वो भी sentido, बताना होगा आपको corresponde también उत्पादन के तौर पे esta भी transformación देखना होगा política बढ़ती marchar en आबादी nuestro को país खिलाने a के लिए partir de las distintas políticas públicas en todos los खाने के niveles. लिए खाद्य En सुरक्षा के primer lugar, मुद्दों a को los भी gobiernos हमें locales, मद्देनजर porque रखते हुए los सोचना gobiernos होगा locales, los gobiernos municipales son los más sensibles स्थानिक y son los सरकार que के tienen साथ sensibilidad मिलके social आप hacia la आपके जो नगर agroecología. निगम Son necesarias जो है उनके algunas साथ में या políticas públicas que प्रादेशिक prohíban या la राष्ट्रीय agroecología स्तर para पे que आप no सरकारों के haya साथ में जब भी empezar políticamente su काम voluntad करेंगे de establecer políticas तब आपको पता públicas चलेगा कि कौन ordenadas कौन सी que नीतियां अभी favorezcan बनी हुई la हैं transición और भी agroalimentaria. बनाने की Ya algunos जरूरत है gobiernos और provinciales उसका a diferentes किस niveles de प्रकार gobierno से tienen प्रभाव leyes de fomento de la agroecología, políticas públicas de इंसानों पे agroecología पड़ता है हमें आने वाली नई नई सरकारों के साथ में इस y también चर्चा tenemos करनी que होगी कि organizar आप las अगर sociedades सरकार में आए por la हैं necesidad de transformar और सामाजिक जो मांग है हमारी कि una dirección आपको nacional अगर de बदलाव municipio. चाहिए खाद्य Cuyo संप्रभुता के promotor es मुद्दों को Eduardo सुनिश्चित Freixas, करना है tiene तो promover la हमें construcción अ, plurianual del अ, Pen Nacional de Municipios y अ, Comunas, que वो hoy और está मेहनत लेते vigente. ¿Cuál es हुए la razón? Porque hoy ese और plan मेहनत nacional करनी होगी prohíbe नई la नीतियां transición बनाने के लिए gradual hacia la agroecología, visibilizando lo que ya existe, que es mucho, और वैसी परियोजना को भी हमें लागू करना que होगा haya una और transición a la agroecología y sobre todo protegiendo विविध los तरीके mecanismos के políticos para tener मुद्दों países को más लेकर हमें agroecológicos. एकजुटता के Ese साथ sería में इन सब सारे मुद्दों पे काम करना होगा तभी हम पर्यावरण के मुद्दों को संवेदनशीलता से समझ पाएंगे और ¿Y cómo se ha जो presentado भी el debate sobre ese tema? हमारे Bueno, justamente como una advertencia de que si vamos hacia la कृषि क्षेत्र agroecología की y जो vamos a हमारी dedicarnos a la पूरी दुनिया है agroecología, vamos a terminar como Sri Lanka, ¿no? Y esto en boca de उसको quién? भी हमें En boca de los máximos ध्यान से देखना होगा defensores de este modelo agronegocio transgénico, आप देखिए जो भी los medios de comunicación que defienden आपदा की agronegocio परिस्थिति में जैसे श्रीलंका है CEOs que जो son देश जाते que हैं dominan वह कभी el मीडिया mundo से agronegocio मीडिया की तरफ से कभी ये नहीं बताया जाता कि उसमें बड़ी कंपनियों का हाथ है इस परिस्थिति को पैदा करने के लिए जैसे रासायनिक रूप से इस्तेमाल करने वाले उर्वरक की कंपनियां हों या जैविक रूप से नवीनीकृत जो बीज का इस्तेमाल होता है वो कंपनियां हों उनके इसमें बहुत बड़ी भूमिका है बहुत बड़ी बड़ी पूंजीवादी कंपनियों ने ही देश की इस परिस्थिति के लिए उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ही देश इस आर्थिक खाई में नीचे गिरा हुआ है और अगर हम चाहते हैं पूरी दुनिया में इस तरीके की परिस्थितियां ना हो तो हमें काफी संजीदगी के साथ में इसके बारे में सोचना होगा अपने स्थानिक स्तर पर कौन सी रणनीतियां हो सकती है जिससे आप इन पारंपरिक रूप से करने वाली खेती को या पारंपरिक बीज को आप बढ़ावा दे सकते हैं जैविक रूप से खेती कर सकते हैं बहुहितधारक कौन कौन से हितधारक इसमें हैं उनके क्या वो किन मुद्दों में रुचि रखते हैं और Por supuesto que podemos alimentar a todo el mundo con agroecología, por supuesto que podemos alimentar a nuestro país y por और supuesto हम सिर्फ venezolanos no solo पर्यावरण alimentar a पूरक nuestro pueblo, sino खेती también और con कृषि nuestro pueblo करते ciudadanía, lo हुए van demandando, पूरी दुनिया son को एक अच्छा un modelo
खाना खिला सकते हैं, अच्छा खाद्य की निर्मित कर सकते हैं, अच्छे खाद्य संप्रभुता को सुनिश्चित कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसीलिए हमें अपने अपने स्थानिक स्तर पर अपनी अपनी जरूरतों को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बोला है कि जिसमें राजनीतिक सहभागिता और सामाजिक सहभागिता के बारे में जो आपने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सवाल चैट बॉक्स में हैं और कुछ सवाल हमारे क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शुरुआत में हमें ये समझना होगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने जो उपस्थित किया कि सिर्फ उर्वरक और कृषि क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी कंपनियों की वजह से श्रीलंका की यह परिस्थिति नहीं है। श्रीलंका कई सालों से इस तरीके के औद्योगिक आपदा के साथ में जूझ रही थी। अब जाके जब लोग रास्ते पे उतर आए हैं, तब हमें ऐसा लग रहा है कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी कंपनियों की पूंजीवादी बड़ी कंपनियों की वजह से उनकी ये परिस्थिति, मतलब वो भी एक कारण है, लेकिन सिर्फ वही कारण नहीं है। हमें इन मुद्दों को भी समझना होगा, क्योंकि आपको ये भी समझना होगा, आप एक रात में इन सारी बड़ी कंपनियां, इन पूंजीवादी या उर्वरक का उत्पादन करने वाली या कृषि कंपनियों को आप बैन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए आप इसका समाधान किस तरीके से ढूंढेंगे, इसकी रणनीतियां बनाने का अभी सही समय है। सिर्फ आर्थिक जो आपदा है तो श्रीलंका में आई हुई, सिर्फ यह एक ही मुद्दा नहीं है, हमें और भी मुद्दों के बारे में भी बात करनी चाहिए, मतलब उसी मुद्दे से संबंधित, लेकिन अपने अपने देश के अनुभव भी हमारे प्रतिभागी और साथी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब श्रीलंका के बारे में अगर बात करें तो वह एक काफी क्लिष्ट और पेचीदा परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, और इस पे समाधान ढूंढना इसलिए मुश्किल है, इसके लिए कोई एक समाधान नहीं है। यह आपदा की परिस्थिति कृषि क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में है, और सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी आपदा की परिस्थिति में हम फंस चुके हैं। Import fertilizer, so the problem will be continue, and its future is very bleak at the moment. तो हमें ये भी जानना होगा कि कृषि के क्षेत्र के बारे में इसलिए ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि उसका सीधा संबंध खाद्य संप्रभुता, खाद्य सुरक्षा के साथ में है, और उसमें उससे अर्थकारण भी जुड़ा हुआ है। तो कम से कम इस एक क्षेत्र के बारे में अगर हम कुछ मांग कर पाए और इसके सुधार के लिए अगर हम कुछ अपने मुद्दों को अगर उठा पाए, जनता की तरफ से अगर ये मुद्दे आगे आ पाए, तो शायद कम से कम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की ओर हम एक कदम बढ़ा सकते हैं, जैव विविधता को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, और इस केस में हमें ये देखना होगा कि अलग-अलग तरीके के Now it's all gone. And when you अब देखिए कि इन बड़े उद्योग से संबंधित समस्याओं से जूझते हुए हमें जनसंख्या के बारे में भी सोचना होगा, उनकी खाद्य सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा।
एक ही प्रकार के बीज को बो के एक ही प्रकार के धान का उत्पादन करने की वजह से जमीन भी कम उपजाऊ हो चुकी है। अब उसमें आप उर्वरक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप सवाल जवाब के सत्र में है तो आप कृपया बहुत कम समय में अपनी बात को रखिए ताकि बाकी लोगों को भी सवाल पूछने का मौका मिले। Dr. Lionel, just please finish off your point, Yeah. the point that आप you were अपना making. मुद्दा खत्म कीजिए, जो भी आप मुद्दा अभी उठा रहे थे। The problem is, the solution is, to us, is हमें पहले हमें समस्याएं ढूंढनी होगी, फिर उसके समाधान देखना होगा, फिर विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान देना होगा और उस बारे में समाधान ढूंढना होगा। क्योंकि भारत में हमने जब देखा तो वहां पे भी इस प्रकार की कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्याएं हैं और वहां पे भी लोगों ने तब तक राह नहीं देखनी चाहिए कि जब तक कोई भयंकर परिस्थिति का सामना आपको करना पड़े, उसके पहले ही आपने सक्रिय होके इन मुद्दों के बारे में जनता की आवाज उठनी चाहिए ताकि दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए काफी लंबे अरसे के बाद में यही परिस्थिति का सामना भारत की जनता को ना करना पड़े। तो शायद यह कुछ सुझाव हो सकते हैं जिसमें हमारे जो नेतृत्वकर्ता है, नेता लोग हैं, जनता है, वह मिल के सभी की भलाई के लिए पोषण को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता को बढ़ावा देने के लिए इसकी मदद हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खाद्य सुरक्षा हम किसे बोलते हैं, खाद्य का उत्पादन मतलब क्या है, यह बहुत मूलभूत प्रश्न है हमारे सामने। आपने बहुत मूलभूत बात कही है और सवाल जो कुछ लोग चैट में पूछ रहे हैं कि सबसे बेहतर वैकल्पिक समाधान श्रीलंका की केस में क्या हो सकता है, यह जो पूछ रहे हैं, तो इसमें समय लगेगा। इसका कोई एक ठोस जवाब नहीं है। इसके बारे में हमारे वक्ताओं ने बात की और what Sri Lanka is going और through. यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एकजुटता के साथ में अपनी अ, अ, सहानुभूति के साथ में हम अपने पड़ोसी देश के बारे में सोचें और ये आशा करें कि जल्द से जल्द वे इस परिस्थिति से उभरे और वहाँ की परिस्थितियाँ ठीक हो जाए। और कृषि का जो मुद्दा है वह एक व्यापक रूप से पर्यावरण के मुद्दों के साथ में कैसे जुड़ता है, यह देखना भी जरूरी है। कौन से ऐसे सवाल वहां पे आए हैं वो भी देखने होंगे। सवाल जवाब के में ज्यादातर उद्योग, राजनीति, पूंजीवादी कंपनियां, भारत से एक सवाल है कि जो भी कृषि संगठन किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए हमारे साथी है वह अपनी बात को रख सकते हैं और वो इस बारे में और बेहतर बात कर पाएंगे। कुछ विशेष रूप से विशिष्ट रूप के कुछ सवाल नहीं है, लेकिन एक अर्थ कारण को ध्यान में रखते हुए निवेश के मुद्दे, कृषि क्षेत्र, उद्योग, पूंजीपति की बड़ी कंपनियां, उनकी भूमिका, सरकार की भूमिका, इन सारे मुद्दों से जुड़े हुए कुछ सवाल या खाद्य उत्पादन के बारे में या फिर मार्केटिंग से संबंधित, मार्केटिंग की श्रृंखला से मार्केट बाजार की श्रृंखला से संबंधित किस तरीके से बाजारू कंपनियां बीज के मुद्दों को देखती है, पारंपरिक या जैविक जो जैविक खेती के बारे में, इन सारे मुद्दों को
box and also Q&A box. But मैं चैट बॉक्स में जो भी सवाल देख रही हूँ, to say my last point is that first of all, I think we have to really think about getting out of this whole green revolution paradigm. ये जो एक food production system. There is no way we can bring उत्पादन के लिए they are हरित क्रांति का जो इस्तेमाल हुआ है, they are actually going उससे to असल में कृषि क्षेत्र का इतना बड़ा नुकसान पूरे कृषि के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान हरित क्रांति की वजह से हुआ है। और उसके ही जो परिणाम हम इंसान भुगत रहे हैं, जो कैंसर से जूझ रहे हैं, जो नुकसान मानवीय शरीर को हुए हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां, पिछली 1-2 पीढ़ियां खराब हुई है, आने वाली पीढ़ियां और भी खराब होती जाएंगी। बीज के मुद्दे हैं, जमीन के मुद्दे हैं, जैविक खेती के मुद्दे हैं, जमीन की उपजाऊ जो गुण विशेष है उसके मुद्दे हैं। तो तंबाकू का उत्पादन के बारे में जो मुद्दे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। तो असल में इंसान को खाद्य संप्रभुता के लिए जो जरूरत है खाद्य की, उसको छोड़ के जो बाजारू उत्पादन है जैसे टोबैको, तंबाकू, उसमें जो ज्यादा निवेश होता जा रहा है क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि उसका इंसानी वंश पे, मानव वंश पे उसका क्या परिणाम हो रहा है, आप उसके बारे में नहीं जानना चाह रहे या उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको सभी देशों में दिखाई देगा कि जो असल में जरूरतमंद धान है, खेती है, जो इंसान को जीने के लिए जरूरी है, उस पे ज्यादा निवेश नहीं होता है। जिससे पैसे मिलते हैं, जिस भी खेती, जिस भी उपज से, उसमें ज्यादा निवेश होता है। हमारे पास में 15,000 से ज्यादा विविधता पूर्ण चावल की प्रकार थे, लेकिन उत्पादन के चक्कर में एक ही प्रकार के जो ज्यादा उत्पादन देने वाले चावल की उपज करना जो शुरू किया, वह चिंताजनक है। एक प्रकार के खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार के बीज का इस्तेमाल करना, जो भी, और वो भी जैविक रूप से नवीनीकृत किए हुए जो बीज हैं, उसका इस्तेमाल यह इंसानों के लिए ठीक नहीं है। हम अपने आप को ही स्वास्थ्य के संदर्भ में एक बहुत गहरी खाई में धकेल रहे हैं। और हमें पोषण के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उत्पादन के बारे में। और इसका जो असर हो रहा है हम पे, जो भी विज्ञान के नाम पे चल रहा है, जो भी तकनीक के नाम पे इस्तेमाल हो रहा है और स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, उसके बारे बहुत बहुत में मुझे धन्यवाद काफी फरीदा, आपने चिंता इस मुद्दों होती है। को फिर से सामने लाया। जो जमीन का मुद्दा है, जो जमीन के उपयोग का मुद्दा है, और आपने जिस तरीके से जो इस मुद्दे को क्वेश्चन आंसर चैट बॉक्स से उठाया, ये काफी महत्वपूर्ण है। और यह भी जरूरी है कि कैसे जो युवा और महिला आंदोलन है, इन चीजों को अपने मुद्दों में ला सकते हैं। अगर आप देखिए जो शक्तियां हैं वो एक तरफ जाती रहेगी तो वो भी, तो हमें किस स्तर की ध्यान देना होगा कि कैसे हम ये आंदोलन को उस तरफ मोड़े कि इन सभी मुद्दे उसमें समाहित हो सके और एक राजनीतिक दबाव बन सके। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। अब मैं आगे, माफ कीजिएगा, हम लोग इस पर जाएंगे। तो मैं फरीदा से शुरू किया था, अब मैं डॉक्टर रामू को आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने टिप्पणी के लिए, या फिर जो भी प्रश्न वो देख रहे हैं चैट बॉक्स में उस पर कोई अगर आंसर देना चाहते हैं तो। हाँ, जैसा दिनेश ने बताया, तो जब हम एग्रो इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ जैविक खेती के बारे में नहीं है, बल्कि उससे आगे है। तो हम लोग
कैसे हम लोग और निरंतर कृषि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम लोग एक पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं, उसमें कैसे अनुसंधान और संस्थान बना सकते हैं और जो फैसले लेने की शक्ति है वो लोगों के हाथ में डाल सकते हैं। उस जैसे हम लोग जैविक खेती की तरफ या प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना है, तो कब लोगों को उसका महत्व पता चलेगा, वो तभी पता चलेगा जब उनके हाथ में फैसले लेने की शक्ति होगी, संस्थान होंगे और यह परिवर्तन तभी आ सकता है जब हमारे सामने एक लंबी दूरी की योजना हो, इस परिवर्तन को लाने के लिए। तो यह बहुत ही ज़रूरी है और हम सभी को उस तरफ बढ़ना होगा और हमें अपने विचारों को आगे बढ़ाने की जगह उन तरीके से चलना पड़ेगा। तो हमें ये देखना होगा कि कैसे जो जन आंदोलन है, इस परिवर्तन की ओर देखते हैं, कैसे लोग इस परिवर्तन की ओर देखते हैं। तो यह हमें अगले नए अ, पैराडाइम की तरफ ले जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ और प्रश्न आए हैं जिसे मैं बताना चाहती हूँ। जो कृषि व्यापार है, उसका फ़ाइनेंशियलाइज़ेशन को कैसे हम लोग रोक सकते हैं? या क्या हमारी रणनीति होगी? तो यहाँ पर यह जो है बहुत जटिल और तकनीकी मुद्दे हैं और इस पे एक सूक्ष्म जो समझ है, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसमें नहीं जा सकते हैं, तो हम इसको आगे के चर्चाओं में याद ध्यान रखेंगे। तो Gracias, अब Marcos. और कोई प्रश्न हो? ¿Cómo esto del मार्कोस efectivamente asistimos a nivel global y en cada uno de nuestros países, en Sri Lanka, en India, हमारे देश en में अगर México, वैश्विक रूप से en देखें, Argentina, तो भारत में, eh, श्रीलंका में, अर्जेंटीना de में maneras antítesis और de concebir la जो economía वैश्विक global, हमारे el sistema अ, agroindustrial जगह है, उसमें debería हमने देखा deberse है a cada कि vez menos actores y centralmente los जो actores financieros que कृषि है componen el वो sistema agroindustrial इसका dominante, जो व्यापार siguen un है paradigma और इससे agrotécnico जुड़े जो impuesto y निवेशक supervisado हैं, उसका हमने excesivamente देखा है कि कुछ es, बहुत como bien छोटे decía से Marcos, समूह el इन सभी paradigma पूरे real तंत्र पे es कब्ज़ा otro. जमाए रखे हैं El modelo और agroindustrial जैसा dominante परेला कह रही थी los grandes कि intereses हमें económicos. इसमें Hablamos अपनी de todo esto संप्रभुता porque के लिए लड़ाई México लड़नी es ese होगी oligopolio और químico, pero जो también बहुत tenemos que ver cómo बड़े-बड़े podemos integrar निवेशक la हैं, industria de la जो manera बड़ी-बड़ी transversal, कंपनियाँ la हैं, digital, चाहे वो la industria रासायनिक farmacéutica, कंपनियाँ para हों, que todo eso चाहे वो reflejemos औद्योगिक dos compañías क्षेत्र में हो que या estamos फिर दवाई financiando बनाने este वाले हो, sector, sosteniendo डिजिटल कंपनी financieramente हो todo este या poder बैंक concentrado y, हो por या कोई supuesto, निवेशक este हो, poder concentrado तो tiene ये ramificaciones सब en शक्तियों las का financieras, केंद्रीकरण en करते los हैं medios y en todos sus और इनकी articulaciones. जो शक्तियाँ हैं, Entendiendo eso, el desafío इनके económico हमारे global सरकारों में es भी lo बहुत है suficientemente fuerte para que las políticas और públicas विज्ञान में actúen भी। en el sentido que तो deseamos, que es en एकदम el sentido de लोगों la की soberanía जनशक्ति y en el sentido de la पैदा करने की बात है, soberanía तो हम alimentaria लोग como वह país. चाहते हैं En कि ese लोगों sentido, की la शक्ति agroecología उभर comienza कर a आए jugar और mucho más जो allá एग्रो de इकोलॉजी meras है atribuciones और खाद्य presupuestarias. सुरक्षा है, उसमें La लोगों के agroecología हाथ es में ये práctica, सारी es शक्तियाँ आनी movimiento social चाहिए y es और 100% एग्रो nacional. इकोलॉजी जो है वो एक तरीके की Política de un sinnúmero de actores que परंपरा है, वो movilizamos एक colectivamente सामाजिक para que eso आंदोलन sea है una और realidad y no उसमें prime, बहुत como priman en सारे buena parte जो de nuestros territorios los एक्टर हैं, intereses de ese puñado tan उन concentrado सभी que का es योगदान el होता है, उन poder del सभी की sistema भूमिका होती agroindustrial है ताकि वो एक dominante. सच्चाई El बन principal सके desafío और a nivel local, सभी जो regional, nacional y global es ताकतें defender हैं, para बड़ी-बड़ी construir ese ताकतें हैं, poder उनके popular खिलाफ एक उत्तर दे suficientemente सके। fuerte para तो que हम ese लोग paradigma स्थानीय de la soberanía स्तर alimentaria पे prime और en nuestros territorios y nos अंतर्राष्ट्रीय स्तर ofrezca पे हमें un एक futuro posible en los मजबूती futuros 10 años. बनानी होगी ताकि Gracias. ये जो अभी की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, जो शक्तियाँ हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों की, उनको हम लोग चुनौती दे सकें। Thank you so much, Marcos. On बहुत the धन्यवाद, farmers' बहुत-बहुत question, धन्यवाद when you think मार्कुस। about greed मुझे amongst farmers, when लगता I है listened to कि some एक panelists, कोई एक I साथी totally या प्रश्न पूछ रहे थे all कि of the किसानों के farmers बीच जो belong to लालच है, farmers organizations, and so उसका क्या some करें? so तो many farmers are not on हम board, and सभी जो है yes, किसानों के साथ feel काम करते not हैं और जो किसान necessarily हैं, enormous, but it जिस they जिस स्केल want पे to आप support because they're finding it viable. And as Ramu said, बात कर रहे हैं, वह there's इतने really not much more ज़्यादा स्तर decentralized पे model नहीं here, है but और we जैसा want मार्कुस कह रहे थे कि centralization from the government, because जो what happens then मदद is है people are left इस to their पूरे own devices विकेंद्रीकरण, and शक्तियों के politicians are विकेंद्रीकरण के लिए they can't cope. उस So उसकी मदद जो है decision सरकार making की तरफ has से to be आनी चाहिए decentralized, और but जो support, फैसले लेने की financial शक्तियाँ हैं, support and so on and वो so forth really must be विकेंद्रीकृत हो taxpayers और funded, which जो will not be वित्तीय going into
मदद हो, वो हमारे टैक्स के, हमारे करदाताओं के पैसों से हमारी खेती में आना चाहिए, लोगों के हाथों में आना चाहिए। और कुछ जो मुद्दे, कुछ जो बिंदु हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, वो जैसे जन स्वास्थ्य है, उससे संबंधित अगर हम देखें, तो जो अभी तक नहीं आए हैं, तो हम लोग देखें कि अभी तक जितने भी पैरोकारी है और जितने भी बड़े संस्थाएँ हैं, वो वो जैसे मान लीजिए एनिमल हस्बेंड्री है, और जो प्रोटीन का स्रोत है, जो जानवरों से आता है, उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती है। तो हमारे यहाँ भी देखें तो बड़ी-बड़ी अ इंडस्ट्री, बड़े-बड़े फैक्ट्री से जो बातें हैं वो अलग हम कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है शाकाहारी भोजन की तरफ बातें चली जा रही है, और जिसके कारण जो है बहुत सारा कुपोषण हो रहा है, क्योंकि जो जानवरों के मांसों में जो प्रोटीन मिलता है, वो कहीं न कहीं हमारे पोषण में नहीं आ पाता है। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और बहुत सारे जानवर जो आज फैक्ट्रियों में जिनका उत्पादन हो रहा है, जो मांसों का उत्पादन हो रहा है, उनसे अलग ये बात होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और बात जो फ़रीदा जिसके बारे में कह रही थी, कि हम लोग अभी जो क्या कर रहे हैं वो एकल कृषि और जो विविधता की कमी है, फिर आनुवंशिक खेती जो है जिसके कारण एकल कृषि हो रही है और केंद्रीकरण हो रहा है। तो यह जो है हमारे कुपोषण का समाधान नहीं कर रही है, और बिना इसको समझे कि हमारे जो जैव विविधता है, जो हमारे खाद्य में विविधता है, जो स्थानीय स्तर पे हम देखें फसलों में, खाद्य पदार्थों में जो विविधता है, वो हमारे कुपोषण का उत्तर है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि उसका उसका उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। हम लोग बहुत सारे बड़े-बड़े कंपनियों का नाम बता सकते हैं, जो कि एकल कृषि की तरफ बात करते हैं, और उसको सरकारों पर दबाव बनाते हुए वो हमारे कृषि में लाना चाहते हैं। तो जब तक हम लोग इन सब के खिलाफ बात नहीं करेंगे, जब तक हम लोग विविधताओं की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जब जब तक हम लोग प्रदूषण मुक्त खेती और विविध खेती की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे कुपोषण का भी उत्तर नहीं आ पाएगा, समाधान नहीं हो पाएगा। और इन सभी बातों में कैसे हम लोग असमानताओं से लड़ सके, कैसे हम लोग जो हमारे भूमि के ऊपर जो हमारा आधिपत्य है, उसके बारे में बात कर सके, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तो अगर हमें गरीबी दूर करनी है, तो अभी का जो ढर्रा है, उससे नहीं हो सकता है। हमें इसमें अपनी अलग-अलग विविधताओं, अलग-अलग सोच के लोगों को लाना पड़ेगा, और इसलिए आज आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि वकील हैं, कृषि के वैज्ञानिक हैं, और संगठन हैं जो सीधे तौर पर किसानों के साथ काम करते हैं, खाद्य सुरक्षा पर काम करते हैं, और हमारे जो हैं, अगर अटेंडीज़ जो हैं, जो आज इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, इसमें देख सकते हैं कि बहुत अलग-अलग भाषाओं में लोग बात कर रहे हैं, अलग-अलग विशेषज्ञता के साथ लोग आए हैं, और एक इस पैनल डिस्कशन के साथ वो रूबरू हो रहे हैं, वो हम भाग ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह 1.5 घंटे की जो चर्चा रही है, उसमें उसके बाद हमें काफ़ी खुशी मिल रही है, और हमें एक समर्थन का एहसास हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएँ भी हैं जिसमें लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, किस तरीके से वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो बताया है। और अ, चैट बॉक्स में हमने देखा है कि जोशीले अ, टिप्पणियाँ भी आई है, जिसने हमें और सोचने के लिए मजबूर किया है, तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे सारे पैनलिस्ट को। और एक जो भाव है समर्थन का, वो मैं श्रीलंका के लोगों को भी ज़ाहिर करना चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हम सभी एक साथ काम आगे भी करते रहेंगे, और इस सब पूरी समझ के साथ हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और हम लोग सभी एकजुट रहें। तो अब मैं दीपिका को Yeah,
आग्रह करूंगी अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमसे जुड़े, हमारे सभी पैनलिस्ट, और बहुत इसके साथ मैं वंदना को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उसने इस संचालन की जिम्मेदारी ली, और बाकी सभी पैनलिस्ट जो है उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदा, मार्कोस, रामू, लियोनल धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ तो जो जन स्वास्थ्य अभियान श्रीलंका के जो साथी हैं जिन्होंने इस चर्चा का ढांचा बनाया, और जो भारत के साथी हैं जिन्होंने इसको आगे आगे लेकर गए, तो मुझे उम्मीद है कि उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि सभी साथी जो आज जुड़े हैं वो आगे भी इन मुद्दों पर बात करते रहेंगे और इस परिवर्तन में हम सभी का साथ देंगे।